Raj, this question is for you. On a scale of 1 to 10, आपको क्या लगता है? मुझे तो पता है, हम सबको पता है कि आप बहुत funny हैं. आपको आपके हिसाब से क्या लगता है? How funny are you? 1 to 10 की स्केल में? जी. बहुत छोटा स्केल है आपका. यार, अरे ये अच्छी बात है. 1 to infinite की स्केल में Raj is infinite. Is that the answer? No, I can be very funny. I can be very serious depending on the character. But in life, I love having fun more than being serious. ये मैं बहुत बोलता भी हूँ कि मुझे दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. मुझे सीरियस बातें करना भी अच्छा लगता है. हम दीनू अमर हम लोग बैठ के कारण बकचोदी भी बहुत करते हैं और हम लोग जो है बहुत गहन सीरियस सिनेमा का डिस्कशन भी करते हैं. तो आई थिंक सब आना चाहिए ना आर्टिस्ट को. Rajkumar, the other question I have for you is, चाहे वो natural हो, supernatural हो, comedy हो, drama हो, everything, you make everything relatable. Can you share that secret sauce with us today? Secret sauce, actually even I don't know what is the secret sauce, to be honest. I think हर आर्टिस्ट का अपना प्रोसेस बहुत अलग होता है. विंची जैसे पेंट करते थे वैसे वैन गॉग नहीं करते होंगे. तो आई थिंक हर एक्टर का हर मेकर का अलग डिफरेंट प्रोसेस होता है. देयर इज नो सीक्रेट सॉस. सीक्रेट सॉस इज टू बी इन द मोमेंट. बहुत ऑनेस्टी से बहुत प्यार से काम करो और शिद्दत से काम करो यार. वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि किसी और गलत रीज़न के लिए काम मत करो. And I feel very happy when, I've been telling this to all my friends and I told this to Dinu also. Is this so important that we have producers like Dinu and Dinu especially because he's empowering so many amazing makers like Karan, like Amar, like Lakshman sir. क्योंकि बहुत ज़रूरी है अच्छे producers को कहानियों को back करना. तभी फिल्म जो है वो सबसे पहले producer से ही बनती है. So I've been telling him all this while that you are doing such a great job, Dinu. We love you for that. Thank you for keep making these beautiful films, these wonderful stories. बहुत कम लोग हैं जो कहानियाँ कह रहे हैं. प्रोजेक्ट बहुत बनते हैं हमारे यहाँ पे पर कहानियाँ कम बनती हैं. So I'm very thankful कि I have a friend who's focusing on stories more than anything else. I love that fact. आपने इनसे पूछा इनका सीक्रेट सॉस क्या है और ये मेरी तारीफ कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि बेसिकली ही इज द बेस्ट एक्टर वी हैव. आई थिंक दैट्स राइट. That's it. That's it. और क्या ही कहा जा सकता है? Thank you. Yes, yes. Raj, I want to ask you that in this film you are stuck in the haldi. What is that one moment from your wedding that you would want to revisit again and again? And what is that one moment in your career that you would want to revisit again and again? From my wedding, I think everything about my wedding. The 3 days were just the most beautiful days of my life. I would love to relive them again and again. So not one, and of course, especially the shadi, the peras. That was the most beautiful thing. When I saw Patrulika walking the aisle, I would love to relive that again and again. And from my career, I would say, when as an outsider you come to this city, it can be very overwhelming, and it's very tough. I know a lot of people, a lot of my friends, actor friends, who've come to this city, और शायद सबको नहीं मिल पाता है. किसी को वक्त लग जाता है, किसी को नहीं लगता है. So I think getting that first film is the most important thing for any actor who's come from outside. तो वो जो पहली फिल्म की जो खुशी होती है ना, जो 2010 में मेरे साथ हुई थी, वो कॉल जब आता है ना कि listen, congratulations, you've got the film. वो बहुत स्पेशल होता है वो मोमेंट. So I would love to relive that moment again and again. I would love to. My mother being with me during my first national award, I would love to relive that moment again and again. So है बहुत सारे moments हैं. Stree 2 जब पहला डे हम नंबर आता है एक बॉक्स ऑफिस का and we all were like what? क्या? ये सच में हो रहा है? I would love to relive that again and again. Yeah. राज, दीनू जी ने अभी कॉमन मैन की बात की. तो जहाँ तक ये जो हमारे देश के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट रहे हैं R.K. लक्ष्मण, उन्होंने कॉमन मैन को खास बनाया. और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें तो बलराज साहनी रहे हैं, संजीव कुमार रहे हैं, इरफान खान रहे हैं, और आप इस जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमन मैन को खास बनाते हुए. तो ये खास बनाना आपको कितना खास लगता है और उनका आपको अच्छा रिस्पॉन्स करना कितना खास लगता है? मैम, आपने जो ये 3 नाम लिए हैं, ये मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है दुनिया में. कि अगर आप मुझे उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में गिन रही हैं जहाँ पे बलराज साहब, संदीप साहब और मेरे पर्सनल फेवरेट इरफान साहब हैं, तो आई थिंक इससे मैं बहुत छोटा हूँ सबके सामने. मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी. I'm still learning, I'm still trying to grow, I'm still trying to do better parts and grow as an artist. पर बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे आके बोलते हैं, जब मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ कि यार आपकी फिल्म देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये तो हम ही हैं यार, बहुत रिलेट कर पाते हैं आपके साथ.
which I think is a victory because the kind of films we are doing, the kind of stories we are telling, that's the point कि लोगों को लगे यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये तो मेरी कहानी भी है। और वो करना एक्चुअली बहुत टफ होता है, वो आसान नहीं होता है कि लोगों को ये विश्वास दिलाना कि ये आप ही हो जो आप पर्दे पर देख रहे हो। पर आई एम वेरी ग्लैड कि लोगों के साथ इतना एक रिलेटेबल फैक्टर है कि लोगों को लगता है कि मैं अपना ही हूँ उनका, जो कि मैं हूँ, मैं आप लोगों के बीच में से ही आया हूँ। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। थैंक यू जी। मैम आप ही बता दीजिए। मैं तो राज आपको बोलना चाहूंगी और मुझे बहुत प्राउड है बेटा, आपको और पत्रलेखा को हमने इतने सालों से देखा और फिल्म इंडस्ट्री जहाँ बनते बिगड़ते रहते हैं रिश्ते, आपने बिना हल्दी लगाए भी उसके साथ इस डोर में बंधे हैं कि और आप लोग दोनों की केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी लगती है, तो ये रिश्ता हमेशा बना रहे, इसकी मैं चाहती हूँ कि आप। मैं एक बात कहूँ, आपने मुझे बेटा बोला ना, हाँ बहुत मजा आ गया। थैंक Can we please clap for ma'am? Thank थैंक यू you. सो मच।